اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ۔ پچھلی کلاس میں آپ کو تعلیم اسلام کے پہلے حصے میں سے آپ کو نماز میں کیا کچھ پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں سکھا چکی ہوں۔ اسلام کا کلمہ، فرسٹ کلمہ اینڈ سیکنڈ کلمہ۔ تو پچھلی کلاس میں آپ کو نماز میں کیا کچھ پڑھنا ہے اور اس کا پورا ٹرانسلیشن وتھ ٹرانسلیشن آپ کو سکھا چکی ہوں۔ آج ہم کریں گے وضو کا طریقہ، کون سی نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے، کس ٹائم نماز پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ آج کریں گے وضو کے طریقے سے شروع۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ کوشچن ہے، وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، صاف برتن میں پاک پانی لے کر، یعنی کہ پانی جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو، پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو۔ جہاں بیٹھ کر وضو کریں گے وہ جگہ بھی کلیئر، نیٹ اینڈ کلیئر ہونی چاہیے۔ قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں، یعنی کہ جس طرف منہ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف منہ کر کے اگر وضو کریں گے تو اچھی بات ہے، اگر اس طرف منہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں۔ آستینے کوہنی سے اوپر تک چڑھا لو، اگر سلیوز لمبی ہوتی ہے تو ان کو اوپر تک چڑھا لیں، ایلبو سے اوپر تک کرنا ہے، اور نہیں تو سلیوز بھیگ جاتی ہے تو ان کو اوپر تک کرنا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھو، تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد وضو کرنا شروع کرنا ہے، اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، کلائی تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے بعد مسواک کرنا ہے، اگر مسواک نہیں ہے تو پھر انگلی سے دانتوں کو مل سکتے ہیں، یعنی ود دا ہیلپ آف فنگر اسے ٹوتھ کو کلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے ناک میں پانی کو ڈالنا ہے، 3 ٹائمز نوز میں پانی ڈالنا ہے، اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھونا ہے، منہ کو، فیس کو واش کرنا ہے 3 ٹائمز۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارے بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھوئیں، یعنی کہ پانی کو زور سے نہیں مارنا، زور سے اس کو منہ پر نہیں ڈالنا، آہستہ سے ڈالنا ہے، آرام سے۔ اور پیشانی اٹ مینس فور ہیڈ، تو فور ہیڈ سے لے کر نیچے تک منہ کو اچھی طرح دھونا ہے۔ تو پیشانی پر پانی ڈال کر دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی کہ فور ہیڈ سے لے کر چین کے نیچے تک فیس کو اچھی طرح دھونا ہے 3 ٹائمز، اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، یعنی کہ جو ایئرس ہیں اس کے سائڈ تک اچھی طرح سے پورے فیس کو واش کرنا ہے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، ایلبو تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پہلے داہنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پہلے رائٹ ہینڈ کو 3 ٹائمز واش کریں گے ایلبو تک، پھر لیفٹ ہینڈ کو واش کریں گے ایلبو تک 3 ٹائمز، پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر سر کا مسا کرو، سر کا مسا کرنا ہے، پھر کانوں کا مسا کرنا ہے، پھر گردن کا مسا کرنا ہے، اور گردن کا مسا یہ آپشنل ہے، چاہے کر سکتے ہیں چاہے نہیں۔ مسا صرف ایک ایک مرتبہ کرنا چاہیے، مسے کو صرف ایک ہی بار کرنا کافی ہے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، پہلے داہنا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا ہے، پھر رائٹ لیگ کو دھونا ہے، اور پھر لیفٹ لیگ کو دھونا ہے، 3 ٹائمز ہی دھونا ہے۔ وضو میں جو بھی ہم کرتے ہیں وہ 3 ٹائمز ہی کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز ہی کرتے ہیں، اور جو مسا کرتے ہیں مسا تو صرف 1 ٹائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے وضو کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز میں کیا کچھ پڑھتے ہیں یہ آپ کا پیچھے پڑھ چکے ہو آپ، اب یہاں پر ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ وہ نماز پڑھنے کے طریقے میں جو آپ کا فرسٹ کوشچن ہے وہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟
जवाब, नमाज पढ़ने का तरीका ये है, जब आपको नीचे बताया जाएगा। वुजू करके पाक कपड़े पहनकर, यानी कि कपड़े भी साफ होने चाहिए। पाक जगह पर किबले की तरफ मुंह करके खड़े हो, किबले की तरफ मुंह करके खड़े होना है। और नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ और अल्लाहू अकबर कहकर हाथों को नाक के नीचे बांध दो। ये मेल्स के लिए है। दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ उसके नीचे रहे, यानी कि राइट हैंड ऊपर रहेगा और लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे की साइड रहेगा। तो नमाज में इधर उधर ना देखो, नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। अदब से खड़े हो। कहाँ देखते हैं? जहाँ नमाज पर ही देखते हैं, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ देखना होता है। खुदा ताला की तरफ ध्यान रखो। हाथ बांध कर सना, सना की जो दुआ है वो पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद पढ़ना है फिर तअव्वुज़, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद पढ़ना है तस्मिया, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ो। अल्हम्दु शरीफ यानी कि अल्हम्दु की सूरत, अल्हम्दु की सूरत पढ़नी है। अल्हम्दु शरीफ खत्म करके अल्हम्दु की सूरत कौन सी है जो हमने पढ़ी थी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत अल फातिहा। ठीक है। इसको कंप्लीटली पढ़ने के बाद आहिस्ता से आमीन कहना है। और फिर सूरत अल इखलास या कोई और सूरत जो आपको ऊपर पढ़ाई गई है, सूरह कौसर भी, सूरह फलक, सूरह नास, इसके अलावा और भी बहुत सारी सूरतें हैं। जो सूरत चाहे आप इसके बाद मिला सकते हैं। ठीक है। जो याद हो वो पढ़ लो, कोई भी सूरत इसके बाद पढ़नी है, कोई भी एक सूरत। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहना है और कहकर रुकू के लिए झुकना है। रुकू के लिए आधे ही झुकते हैं, जब नी को हाथों से पकड़कर झुकते हैं। तो रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अजीम 3 या 5 मरतबा पढ़ना है। फिर तस्मिया, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। यानी कि रुकू से जब खड़े होते हैं इस तस्बीह को जब तक पढ़ा जाता है, और जब सीधे खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद तहमीद पढ़ते हैं, यानी कि और रब्बना लकल हम्द ये पढ़ना है। और तो रुकू में ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अजीम। उसके बाद जब रुकू से खड़े होते हैं तो ये वाला पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। और जब सीधे खड़े हो जाएं तो पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द। ठीक है। फिर तकबीर कहते हुए, यानी कि अल्लाहू अकबर कहना है, और सजदे में इसी तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो। सजदे करने का जो तरीका है वो ये है कि पहले दोनों घुटनों को जमीन पर रखना है, फिर दोनों हाथों को रखना है, और फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक और फिर पेशानी जमीन पर रखो। पहले नाक रखो, फिर फॉरहेड को जमीन पर रखना है। तो सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहना है। फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा इसी तरह करो। जब बैठ जाएंगे फिर से अल्लाह अकबर कहेंगे और फिर से 3 या 5 बार यही कलीमे पढ़ेंगे सजदे वाले, सुबहान रब्बियल आला। और इसी तरह 2 सजदे हो जाएंगे। जब 2 सजदे कंप्लीट हो जाएं फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। ठीक है। उठते वक्त जमीन पर हाथ ना टेको। जब सजदे के लिए उठते हैं तो फिर जमीन पर हाथ नहीं टेकने, बल्कि स्ट्रेट खड़ा होना है। सजदे तक एक रकात पूरी हो गई। ठीक है। सजदे तक एक रकात पूरी हो जाती है। अब दूसरी रकात शुरू हुई, तो दूसरी रकात शुरू हो जाती है। तस्मिया पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ लो। पहले की तरह, पहले क्या पढ़ा था? पहले सना की सूरत भी पढ़ी थी, लेकिन अब सिर्फ तस्मिया पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है और सूरत अल फातिहा पढ़नी है। और कोई और सूरत मिलाओ, कोई भी सूरत उसके बाद पढ़ लो। फिर रुकू, कौमा
और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ, तो पहले की तरह ही ये दूसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। इसमें फिर सना नहीं पढ़ते। अब जब दो रकात पूरी हो जाएंगी तो पहले तशहद पढ़ेंगे, यानी कि अत्तहियात, तहियातुलिल्लाह की जो दुआ है। और फिर दरूद शरीफ पढ़ो। फिर दुआ पढ़ लो दरूद शरीफ के बाद, फिर सलाम फेर लो। पहले दाहिनी तरफ यानी कि राइट तरफ सलाम को फेरते हैं, फिर बाईं यानी लेफ्ट तरफ सलाम को फेरना है। सलाम फेरते वक्त दाहिनी और बाएं तरफ मुंह मोड़ लो। सलाम फेरने का जो तरीका है, तो उसका मतलब ये है कि पहले राइट तरफ साइड में मुंह मोड़ना है और फिर लेफ्ट साइड में मुंह को मोड़ना है। ये दो रकात नमाज पूरी हो गई। ठीक है, इस तरह दो रकात नमाज पूरी हो जाती है। तो ये दो रकात नमाज का तरीका था। तो यहाँ दो रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद ये वाली दुआ पढ़नी है। ये ऊपर भी आपको सिखाई गई थी। अल्लाहुम्मा आतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। सलाम करने के बाद इस दुआ को पढ़ो और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगो। फिर दुआ मांगनी है, हाथ बहुत ज्यादा ना उठाओ, यानी कि कंधों से ऊंचे ना करो। शोल्डर्स से ऊपर तक हाथों को नहीं उठाना दुआ मांगते वक्त, शोल्डर्स के नीचे ही होने चाहिए। ठीक है, दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ तक की जो दो रकातें पढ़ने का तरीका है, इसी तरह से दो रकात पढ़ी जाती है। लेकिन अगर चार रकात पढ़नी हो तो फिर दो रकात के बाद सिर्फ अत्तहियात पढ़ते हैं, तशहद यानी कि सिर्फ तशहद पढ़ते हैं, और उसके बाद खड़े होकर तीसरी और चौथी रकात भी इसी तरह पढ़ी जाती है जिस तरह दूसरी रकात पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चार रकातें कंप्लीट हो जाती हैं। अगर तीन रकातें पढ़नी है तो तीन रकातें भी उसी तरह पढ़ी जाती हैं, कोई और अलग मेथड नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहली रकात है उसमें हम सना की सूरत को एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सना की जो दुआ है, और बाकी जो है वो सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो जहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। तो चारों रकातें पढ़ने का तरीका आपको मालूम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया आपका नमाज पढ़ने का तरीका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सजदों के दरमियान में और तशहद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए। अब ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही नहीं है कि सजदे के दरमियान में या तशहद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए। दोनों हालतों में एक ही तरह बैठना चाहिए या कोई अलग अलग मेथड है। तो दाहिना पाँव यानी कि राइट लेग खड़ा रखो, उसकी उंगलियां किबले की तरफ रहें, उंगलियां किबले की तरफ रहें, और बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। यानी कि जो लेफ्ट वाला लेग है उसके ऊपर बैठना है, और जो राइट वाला लेग है उसकी जो फिंगर्स हैं वो किबले की तरफ होनी चाहिए। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। ठीक है, जब बैठते हैं तो दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाजों में कुछ फर्क होता है या नहीं। इमाम, मुनफरिद और मुक्तदी। इमाम किसे कहते हैं, मुनफरिद किसे कहते हैं, और मुक्तदी किसे कहते हैं, ये तीनों आपको पीछे बताए जा चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ईमान मुन इमाम, मुनफरिद और मुक्तदी। बहुत से आदमी मिलकर जो नमाज पढ़ते हैं उसे जमात की नमाज कहते हैं, और उस नमाज को पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। ठीक है, इमाम, तो इमाम क्या हुआ, जो नमाज पढ़ाता है उसे इमाम कहते हैं। और उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों को मुक्तदी कहते हैं। ठीक है, इमाम वो है जो नमाज पढ़ाता है, मुक्तदी वो है जो उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। और मुनफरिद क्या है, अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप पर डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, इनको आप लर्न करिएगा। ठीक है, इमाम होता है नमाज पढ़ाने वाला, मुनफरिद जो उसके पीछे नमाज पढ़े, और मुक्तदी जो अकेले नमाज पढ़ता है उसको कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ थे हम। ये था सवाल, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाजों में कुछ फर्क होता है या नहीं। तो हाँ, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है क्या डिफरेंस है। एक फर्क यह है कि इमाम और मुनफरिद पहली रकात में सना के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्दु शरीफ और सूरत पढ़ते हैं, और दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह और अलहम्दु शरीफ और सूरत पढ़ते हैं। मगर मुक्तदी को सिर्फ पहली रकात में सना पढ़कर दोनों रकातों में खामोश खड़ा रहना चाहिए। ठीक है। और दूसरा फर्क यह है कि रुकू से उठते वक्त इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते कहते हैं, और मुनफरिद तस्मीया के साथ तहमीद भी कह सकता है, मगर मुक्तदी को सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहना चाहिए। ठीक है। मुक्तदी को सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहना चाहिए। यहाँ पर वाव नहीं है तो इसको हम रब्बना लकल हम्द भी पढ़ सकते हैं और रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ सकते हैं। वाव से इसके मायने में और आ जाता है। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब और तेरे ही लिए सब तारीफ है। और अगर हम वाव को हटा दें तो रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए सब तारीफ है। ठीक है। ना का मीनिंग हमारे ही होता है, तो रब्बना ए हमारे रब, अगर लका है तो तेरे ही लिए, और अगर वला का है तो और तेरे ही लिए, और का इजाफा हो जाएगा फिर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज की 3 या 4 रकातें पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ेंगे। आंसर, 2 रकातें तो इसी कायदे से पढ़ी जाएं जो ऊपर बयान हुआ, मगर कायदे में अत्तहियात और तशहद के बाद दरूद शरीफ ना पढ़ें। ठीक है। अत्तहियात और तशहद एक ही है, तो उसके बाद दरूद शरीफ नहीं पढ़नी, बल्कि अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं। फिर अगर नमाज वाजिब या सुन्नत या नफिल है तो 2 रकातें पहली 2 रकातों की तरह पढ़ ले, और अगर नमाज फर्ज है तो तीसरी रकात और चौथी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरत ना मिलाएं। ठीक है। अब नहीं मिलानी, बाकी और सब इसी तरह पढ़ें जैसे पहली 2 रकातें पढ़ी हैं। तो समझ आ रहा है किस तरह पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें भी पढ़ी जाती हैं या नहीं। तो नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें नहीं पढ़ी जाती। सुन्नत या नफिल 2 या 4 रकातें ही पढ़ी जाती हैं। ठीक है। सुन्नत और नफिल की सिर्फ या तो 2 रकातें होती हैं या 4 होती हैं, 3 रकातें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकू करने का सही तरीका क्या है। रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर है, यानी कि सर ना कमर से ऊंचा रहे और ना नीचा हो जाए, और दोनों हाथ पसलियों से अलहदा रहें, यानी कि गैप रहे, और घुटनों को हाथों से मजबूत पकड़ लिया जाए। तो रुकू करने के लिए घुटनों को मजबूत पकड़ना है और हाथों को बिल्कुल मिलाकर नहीं रखना, फासले से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सजदे से रिलेटेड है। सजदा करने का ठीक तरीका क्या है। आंसर, सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के नीचे जमीन पर रहे, हाथों के नीचे जमीन पर रहे, और कलाइयां और कोहनियां जमीन से ऊंची रहे। हाथ जो है, जो प्लम है, हथेली है, वो जमीन पर रहे, और जो कलाइयां हैं, रिस्ट है और एल्बो है, उसको हवा में रखना है ऊपर।
जमीन से नहीं मिलाना, जमीन से ऊंची रहें। और पेट रानों से अलहदा रहे, पेट को इस तरह पैरों से नहीं मिलाना, अलग रखने हैं। और दोनों हाथ पसलियों से अलग रहे, जैसे रुकू में होते हैं उसी तरह सजदे में भी अलग रखना है, घुसाना नहीं है अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज के बाद उंगलियों पर शुमार करके क्या पढ़ते हैं? उंगलियों पर भी पढ़ते हैं और तस्बीह पर भी पढ़ते हैं। तो सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, और अल्लाह अकबर 34 बार पढ़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा सवाब है। तो सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं 33 टाइम्स, 33 टाइम्स पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 टाइम्स पढ़ेंगे अल्लाह अकबर। इसको पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब होता है। तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा यही खत्म होता है। इसके बाद आपका शुरू होता है दूसरा हिस्सा। तो इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगले हफ्ते आपकी कोई क्लास नहीं होगी, अगले हफ्ते होगा आपका टेस्ट। ठीक है, आपके ग्रुप में कुछ पोल डाले जाएंगे, वहां से आपको मल्टीपल चूज क्वेश्चन की तरह कोई एक आंसर को सिलेक्ट करना होगा। जो आंसर सही है उसका आप जवाब देंगे। तो अगले हफ्ते तक आपको वीडियोस दे दी जाएंगी, इनके थ्रू आप क्वेश्चंस को लर्न करिएगा। चाहे तो राइट करिएगा, लिखिएगा इनको। और इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है जिनके आंसर, तो कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। वीडियो को 2 या 3 से 3 टाइम्स प्ले करके आपको इजीली वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। आज हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको और कुछ भी लेती, लेकिन क्योंकि अभी मैं लैपटॉप से ही आप लोगों को क्लासेस दे रही हूँ, तो थोड़े टाइम तक हमें एडजस्ट करना होगा। उसके बाद में आपको कुछ और सब्जेक्ट का एडिशन भी इसमें करूंगी। जब हम नेक्स्ट किताब स्टार्ट करेंगे तो तब से कुछ और चीजें भी आपको पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।